बनाया है। थैंक यू सोनल जी। एंड लीना जी, यू वांटेड टू से समथिंग, आप बोलना चाह रहे थे कुछ? उसके पहले लेट्स स्टार्ट विद नवकार मंत्र। हाँ प्लीज, आप वो शुरू कर सकते हैं, गायत्री मंत्र, and then we start with it. So now Saruji, welcome to our platform. So we are so fortunate to have you here with divine soul yourself and divine soul of angels connected with you. Through you will be connected with so many divine souls also. So lucky to have you here. So many good things I heard about you, and your introduction was sent out in our Dhyan group also. So everyone knows about it, about your life, how committed you are and how divine you are. So we are very lucky. We'll start with an Okar mantra and then Gayatri mantra, and then we can do a little bit question answers. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोय सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सव पावपणाशणो मंगलाणं च सव्येसिं पद्मं हवै मंगलं। आप गायत्री मंत्र रिसाइट कर सकेंगे? आप करें। जैमिनी जी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। Thank you Saruji. Go ahead Lina ji. My question is, before the word, when we say the angel's name, Archangel Michael, what is the meaning of arch? It's not arch, it's archangel. Ark, A-R-K. A-R-K, okay. So what is the meaning? A-R-C-H. A-R-C-H. Sorry. Yeah. So what does that mean? Just as when you talk about any god and goddesses, you say Shri. So it's the word of respect that you give to the archangel. Okay. And archangels basically, when you talk about the angelic hierarchy, so just in the office, you have manager, then you have general manager or otherwise. So the fairies come, after the fairies, the angels come, then after the angels, archangels come. It is about the responsibilities that they are given. Oh, okay. Yes, the power that they have. Thank you so much for this clarification. I didn't know that. I didn't know it either. Saruji, I didn't know it either. Thank you, Lina, for question. Anybody else has any question before we start? Yeah, we'll start first, and then after that, अगर कोई प्रश्न questions होते हैं तो हम ले लेते हैं. Sure. Definitely. Okay. So thank you so much. Yes. Sonal, can you spotlight Saruji, please? Yeah. Thank you, Saruji. Shukriya, Damayanti ji, and Shukriya, the entire team. So I'm really very happy to be a part of this team here because आज मुझे बहुत से प्यारे लोगों से मिलने को आज एक opportunity मिला है and to know this part of the world. So thank you angels and thank you Patri ji and thank you the divine energies जो हमेशा मुझे ऐसे प्यारे से लोगों तक पहुंचाते हैं और उनके दिलों तक पहुंचाते हैं और उसके लिए बहुत शुक्रिया और दमयंती जी का बहुत शुक्रिया who has given me this opportunity. शुक्रिया और सभी दोस्तों का जो कि इंडिया से भी ज्वाइन हुए हैं आज मेरे साथ, उनका भी बहुत शुक्रिया और बाकी सब लोग जो अलग-अलग जगह से ज्वाइन हुए हैं who have brought this energies here, उनका भी बहुत शुक्रिया. So thank you so much angels and everybody. Thank you so very much. तो चलें अब आज का सेशन हम थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग वाला सेशन है क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल सर्कल में आते हैं तो ग्राउंडिंग बहुत ज्यादा सुनते हैं ये वर्ड बहुत ज्यादा सुनते हैं. हर कोई आपको बोल रहा होता है व्हाई डोंट यू ग्राउंड योरसेल्फ, व्हाई डोंट यू ग्राउंड योरसेल्फ. लेकिन क्या होता है कि बिकॉज हम लोग ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि अगर किसी दोस्त ने बोला है ग्राउंड करने के लिए तो हम बिना सोचे समझे वी विल स्टार्ट ग्राउंडिंग आवरसेल्व्स.
चाहे हमें जरूरत है या नहीं है, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ग्राउंडिंग किसे कहते हैं, अर्थिंग किसे कहते हैं, एंड वी जस्ट ट्राई टू डू इट। एक अंधाधुंध जिसे बोलते हैं ना, काम करने लग जाते हैं, बिकॉज दमयंती जी ने बोला है, बिकॉज शारू ने बोला है, बिकॉज लीना जी ने बोला है, या बिकॉज लीना जी कर रही है, उनको फायदा हुआ है तो मुझे भी हो जाएगा। यू नो दैट काइंड ऑफ अ हर्ड मेंटालिटी वी ऑलवेज हैव। चाहे हम लोग कितने ही आध्यात्मिक हो गए हैं, स्टिल दैट हर्ड मेंटालिटी इज देयर। सो आई वांट टू ब्रेक दैट हर्ड मेंटालिटी बाय टेलिंग यू कि भाई, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, देन यू हैव टू गेट इनटू द रूट्स ऑफ एवरीथिंग। और इसी वजह से पत्री जी ने स्वाध्याय के ऊपर बहुत ज्यादा उसके ऊपर एक जिसे बोलते हैं फोकस डाला है, दैट यू हैव टू रीड बुक्स। क्यों बोला उन्होंने कि ध्यान के साथ साथ आपको स्वाध्याय करना जरूरी है? बिकॉज जब हम स्वाध्याय की बात करते हैं जी, हाँ जी, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ग्राउंडिंग की डेफिनेशन क्या होती दमयंती जी, आई एम कमिंग टू दैट। ओके ओके क्योंकि Because बहुत लोग नहीं, नॉट एवरीबडी वुड नो इट। यस Damayanti ji, I am coming to everything. You have to be a little patient with me. So सारे आंसर्स आपको मिलेंगे. So please be patient. सब कुछ मिलेगा आपको. Right? So what I'm trying to say is, पत्री जी ने, हम लोग जब स्वाध्याय की बात करते हैं, तो स्वाध्याय इसीलिए बोला है that by reading books what happens is, हम लोग का जो एक मेंटल जो हमारी कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज होती है, हम लोगों का एक प्लेटफॉर्म इंक्रीज होता है, जो हमने अंदर एक कोर बिलीफ सिस्टम्स है वो टूट जाते हैं। व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग बुक्स, वी गेट द इंफॉर्मेशन, वी गेट द विजडम। सो it is very important for us to read, it is very important for us to do dhyana, it is very important for us to do sajjan sangatya, so that we can discuss these things with each other, and it is very 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 important. Now as Damayanti ji was asking me, भैया ग्राउंडिंग क्या होता है, क्योंकि हमें ग्राउंडिंग ही नहीं पता तो हम ग्राउंड कैसे करेंगे अपने आप को। तो ग्राउंडिंग किसे कहते हैं, तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक सिंपल सा एक डेफिनेशन होता है, जो ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके ग्राउंडिंग को। ग्राउंडिंग होता है जब हम बैलेंस आउट करते हैं अपनी फिजिकल एनर्जी को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ। एंड हाउ डू वी डू दैट? वी डू दैट बाय कनेक्टिंग विद मदर अर्थ। That is grounding, especially for the meditators, especially for the people who are meditating। ध्यानियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब हमें ग्राउंड करना है, बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस, या तो हम बहुत ज्यादा एनर्जी ले लेते हैं या हम बहुत ज्यादा एनर्जी दे देते हैं, वी फील ड्रेन्ड समटाइम्स, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको ग्राउंड करना बहुत जरूरी होता है हमें। और ग्राउंडिंग जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है, बैलेंसिंग आउट योर फिजिकल एनर्जी with the spiritual energy through connecting with the Mother Earth. Now, इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, the feeling of balance, centeredness and connection। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, they are very 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 important। जब भी आप ग्राउंड करें, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, जो कि शायद अभी दमयंती जी ने नहीं पूछा, लेकिन मैं बता देती हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में जरूर आएगा कि भाई हम लोग सूरज के साथ, चंद्रमा के साथ, व्हाई डोंट वी ग्राउंड विद सन, मून एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ प्रकृति? हम क्यों नहीं करते हैं? हम मदर अर्थ के साथ ही क्यों करते हैं? ऐसा क्या है मदर अर्थ में जिसकी वजह से हमारी जो ग्राउंडिंग, हमारी बॉडी की ग्राउंडिंग मदर अर्थ के साथ होती है और किसी के साथ नहीं होती है? क्यों? ऐसा क्यों है? कभी आप लोगों ने सोचने की कोशिश की? बिकॉज हम लोग ग्राउंड करने बैठ जाते हैं, बट वी नेवर हैव दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में कभी नहीं आता है कि हम लोग ग्राउंड मदर अर्थ के साथ ही क्यों करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो कि हम मदर अर्थ के साथ क्यों करते हैं ग्राउंडिंग। सो क्या है कि जब हम मदर अर्थ की बात करते हैं, मदर अर्थ का भी एक ऑरा होता है। शी ऑल्सो हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑन विच शी वाइब्रेट्स। जिस तरह से हमारे ऑरा है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वैसे ही मदर अर्थ का भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। एंड मदर अर्थ ऑलवेज वाइब्रेट्स ऑन अ फ्रीक्वेंसी which ranges from 3 Hz to 60 Hz.
ये मैं आपको एक सिंपल एक जिसे बोलते हैं कि एक आइडिया दे रही हूँ. Doesn't mean that Mother Earth comes to the lowest of the frequency. 3 hertz is lowest. उसके ऊपर नहीं आती है वो. 60 hertz is मैक्सिमम का भी मिनिमम. यानी कि 60 hertz से ऊपर कब जाता है मदर अर्थ का, जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स बहुत ज्यादा कोहेरेंट हो जाते हैं उनके साथ, जैसे जैसे लोगों की थिंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जैसे जैसे अच्छे काम हो रहे होते हैं, मेडिटेशंस जैसे हो जाते हैं, या लोग रिलीजियसली बहुत ज्यादा हवन कर रहे हैं, भगवान का बहुत नाम जप रहे हैं, मंत्रास चैंट हो रहे हैं, इससे मदर अर्थ की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी बढ़ती है. सो उनकी एनर्जी बेसिकली होती है 3 hertz से 60 hertz. Now, the lowest frequency on which Mother Earth operates is 7.8 hertz, जिसे Schumann's resonance भी बोला जाता है. अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, इंटरनेट पे Schumann resonance जरूर पढ़ें, समझें उसको क्या है. Schumann's resonance is the frequency of 7.8 hertz on which Mother Earth vibrates, जिसके ऊपर Mother Earth vibrate करती है. अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि मदर अर्थ 7.8 हर्ट्ज पे वाइब्रेट कर रही है? इसके सिग्निफिकेंस ये है बिकॉज हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ह्यूमंस, दे ऑल्सो वाइब्रेट ऑन अ फ्रीक्वेंसी, और उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है? 7.8 हर्ट्ज. हम 7.8 हर्ट्ज पे वाइब्रेट करते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हम उतने पे ही रह जाते हैं, उससे बढ़ती है हमारी फ्रीक्वेंसी व्हेन वी स्टार्ट कनेक्टिंग विद आवरसेल्व्स, या हम डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं, एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, गॉड एनर्जी या गॉडेस एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है. और जब हमारी बढ़ती है तो मदर अर्थ की भी बढ़ती है. बट हमारी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जो नॉन मेडिटेटर्स भी हैं, वो 7.8 हर्ट्ज पे वाइब्रेट करते हैं. अब यहाँ पे क्या हुआ है? कॉमन चीज क्या है? फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, जिसके ऊपर हम और जिसके ऊपर मदर अर्थ वाइब्रेट कर रही है 7.8. और जब ये कोहेरेंस होता है तो ग्राउंडिंग होती है. जिस तरीके से सपोज लीना जी हैं और दमयंती जी हैं, ठीक है, जब लीना जी दमयंती जी से फर्स्ट टाइम मिली, या दमयंती जी लीना जी से फर्स्ट टाइम मिली, तो उनको बहुत अच्छा लगा, अंदर से एक बहुत अच्छी फीलिंग आई, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा प्यार बहुत ज्यादा आया, बिकॉज दोनों की फ्रीक्वेंसीज मैच कर रही थी. राइट? तो उसी तरीके से हमें ग्राउंडिंग जब हम करते हैं तो हम बहुत ज्यादा खुश इसलिए होते हैं, हमारी बॉडी इतना वाइटैलिटी में इसलिए होती है बिकॉज हमारी फ्रीक्वेंसी मदर अर्थ की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है. एंड दैट्स व्हाई वी फील वेरी वेरी काम, वेरी बैलेंस्ड, बिकॉज हमारी फ्रीक्वेंसी वाला कोई हमारे साथ है. Because Mother Earth goes to that frequency 7.8 hertz Schumann resonance, and then she connects with us. वो हमारी दोस्त बन जाती हैं उस समय, वो कनेक्ट करती हैं और वो चीज करने के लिए हमें बोलती हैं जिस चीज की हमें जरूरत है, जैसे बैलेंसिंग और रिलैक्सेशन और कामनेस, व्हाटएवर आवर बॉडी रिक्वायर्स टू ग्राउंड आवरसेल्व्स. इससे क्या होता है, क्योंकि अब कॉमन चीज है हमारे और मदर अर्थ के बीच में, तो हमारी जो जैव प्रणाली है, यानी कि हमारा बायो सिस्टम जो है, वो बहुत ज्यादा कोहेरेंस में हो जाता है. इट बिकम्स वेरी कोहेरेंट. और इसी वजह से बिकॉज ऑफ दिस कोहेरेंस हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को स्टेबलाइज कर पाते हैं थ्रू मदर अर्थ. आई होप आई डिड मेक यू अंडरस्टैंड कि हम मदर अर्थ के साथ ही ग्राउंड क्यों करते हैं. कल को अगर आपसे कोई पूछे तो प्लीज इस इंफॉर्मेशन को समझें और उनको दें. अगर और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो बहुत सी चीजें हैं पढ़ने के लिए, प्लीज डू रीड देम. इंटरनेट भरा होता है आजकल इंफॉर्मेशन के साथ. यू वांट टू रीड देम, गो थ्रू देम, प्लीज डू दैट. नाउ द सेकेंड थिंग इज ग्राउंडिंग क्या करता है. व्हाट इज द रोल ऑफ ग्राउंडिंग? क्यों हमें करना चाहिए, स्पेशली मेडिटेटर्स को, किस लिए? तो ग्राउंडिंग 3 चीजें करता है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम ग्राउंड क्यों करें अपने आप को. तो सबसे पहले ग्राउंडिंग जो होता है, इट्स एन इंस्टेंट वे ऑफ
warding off or discharging our negative or unwanted energies. कोई भी unwanted energy है, जैसे सपोज हम कहीं बाहर जाते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग लेकर आते हैं, चाहे वो फिजिकल डस्ट डर्ट हो या किसी भी तरीके की इमोशनल या मेंटल डेब्री हो जो हम ले लेते हैं। सपोज हम किसी फ्रेंड से मिले, वो फ्रेंड बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंसान है, हमेशा कंप्लेन करता है, हमेशा, और आप वहां पे बैठते हो बहुत ड्रेन फील करते हो, बिकॉज that person has taken your energy. So when you do the grounding with Mother Earth, she gives you the energy back. वो आपको आपकी एनर्जी फिर से लौटा देती। That is the best thing of the grounding when you're doing it with Mother Earth. सेकेंड रोल ग्राउंडिंग का क्या है? सेकेंड मेन चीज ग्राउंडिंग क्या करता है? इट एक्चुअली रिजुविनेट्स आवर एनर्जी फील्ड, यानी कि हमारे एनर्जी फील्ड, हमारे ऑरा का नवीकरण करते हैं। ग्राउंडिंग हैज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड थर्ड इज बैलेंसिंग एंड अलाइनिंग आवर फिजिकल बॉडी with our mental and emotional body. ये 3 रोल्स जो है ग्राउंडिंग अदा करता है, मेजर रोल्स जो होते हैं ग्राउंडिंग के, और इसी वजह से हमें ग्राउंडिंग करना बहुत अच्छा लगता है मदर अर्थ के साथ, बिकॉज शी टेक्स अवे ऑल द अनवांटेड एनर्जीज फ्रॉम अस व्हिच वी डोंट वांट। अब थोड़ा सा ग्राउंडिंग को और डीपली समझते हैं दोस्तों। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझते हैं तो ही ग्राउंडिंग अच्छी तरीके से कर पाएंगे, अदरवाइज आधा अधूरा काम करेंगे आप लोग। या ना, ग्राउंडिंग और किस वजह से हम करते हैं इसको थोड़ा और समझते हैं। जिस तरीके से मदर अर्थ का एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी देयर इज अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। और जिस तरीके से मदर अर्थ के पास बहुत से वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी बहुत पूरा वाटर, 72% हम लोगों का पानी ही है बॉडी में, और हमारे अंदर भी मिनरल्स होते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स दैट मदर अर्थ हैज, हम लोग एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। वी बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट इज द रीजन why when we are connected with Mother Earth completely, we are able to release and we are able to absorb the energy effectively. बहुत अच्छे से उस एनर्जी करंट को हम ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। जब हम मदर अर्थ की एनर्जी को हम लेते हैं, उसको हम अर्थिंग कहते हैं। जब हम अपनी एनर्जी को देते हैं, उसको ग्राउंडिंग कहते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। अर्थिंग मीन्स व्हेन वी आर टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स, एंड ग्राउंडिंग मीन्स व्हेन वी आर गिविंग इट टू द मदर अर्थ, व्हाटएवर एनर्जीज आर देयर। नाउ जब हम एंशिएंट ट्रेडिशंस की बात करते हैं, जब पुराने जमाने की बात करते हैं, एंशिएंट ट्रेडिशंस में हमारे जो पैरों का तला है, जो पैरों के तला होता है, जिसे सोल बोलते हैं, SOLE, जिसे सोल बोलते हैं, उसको मैप बोला गया है जो एंशिएंट ट्रेडिशंस में। इनफैक्ट इवन इन इंडिया, हम लोगों के यहाँ पे जो हमारे ऋषि मुनि ये सब लोग होते थे, ये लोग हमारे पैरों के तले को एक मैप की तरह देखते थे। अगर आप देखेंगे अभी भी आपके उसमें लाइंस बनी हुई होंगी, और वहां पे एक्सचेंज पॉइंट्स हैं। जो एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर वाले लोग होते हैं, वो लोग पॉइंट्स दबाते हैं, इफ यू रिमेम्बर, इफ यू नो दैट। तो हमारे सोल में भी एक्सचेंज पॉइंट्स होते हैं, और वो एक्सचेंज पॉइंट्स में ट्रांसफर होता है इन एनर्जी करंट्स का, यानी कि लेना और देना, एब्जॉर्ब करना एंड टेक इन, एब्जॉर्बिंग, टेकिंग और गिविंग, व्हाटएवर, ये एक्सचेंज होता है। दिस हेल्प्स, जब हम ये एक्सचेंज करने लगते हैं, उसकी वजह से हमारा जो बायो सिस्टम होता है बहुत अच्छे तरीके से रन करने लगता है, बहुत अच्छे तरीके से चलने लगता है। नाउ हमारा हार्ट जो है और हमारा ब्रेन जो है, ये दोनों चीजें, ये दोनों हमारे ऑर्गन्स जो है बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर रहे हैं। रोज एवरी डे दे आर प्रोड्यूसिंग दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनसाइड आवर बॉडी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चल रही है हमारे बॉडी में, हमारा
हार्ट और हमारा ब्रेन ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, लेकिन जब हम मदर अर्थ से उनके इलेक्ट्रॉन्स हम लेते हैं या मदर अर्थ को हम इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, मोस्टली जब हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, तो इससे ना केवल हमारी क्लेंजिंग होती है बॉडी की, बल्कि हमारी बॉडी रिपेयर भी होती है, और इट एक्सेलरेट्स एंड स्पीड्स अप आवर हीलिंग, एम्पलीफाई कर देती है उसको, हमारी हीलिंग को एम्पलीफाई करती है, एम्प अप करती है उसको, जिसकी वजह से, इसी वजह से जब हम पुराने जमाने में, अगर आपने देखा होगा कि हमारे जो पूर्वज होते थे, एंसेस्टर्स होते थे, मोस्टली वो लोग बिना चप्पल सैंडल जूते पहन के वो लोग वॉक किया करते थे. दे नेवर यूज्ड टू वेयर एनीथिंग बिकॉज दे नेवर वांटेड कि जो ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी है, लेना और देना, मदर अर्थ के साथ एनर्जी का लेना और देना है, वो बंद ना हो. इट शुड कीप हैपनिंग एंड दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू ग्राउंड देमसेल्व्स. पूरा दिन उनका ग्राउंडिंग चलता रहता था. So it is very important for us to understand why grounding is so important. और ये क्या अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है ये ग्राउंडिंग का, ये सेंचुरीज ओल्ड है, और इंडियन ट्रेडिशन में, हिंदुस्तान में ये चीजें शुरू से ही थी. अब सिर्फ ये है कि अवेयरनेस आ रही है हमारे अंदर इन सब चीजों को समझने की और बूझने की. हमको एक जिसे कहते हैं कैपेबिलिटी आ गई है. नाउ वी आर बिकमिंग कॉन्शियस एंड अवेयर. Now, another thing grounding does to our body is balancing our yin and yang energy. Yin is the female energy, yin is the feminine energy, and yang is the male energy, or which is very active energy. तो yin जो होती है वो कहाँ से आती है? yin जो होती है वो सोल चक्र से हम लेते हैं. सोल चक्र से आते हुए वो हमारे सहस्रार पे आती है, यानी कि क्राउन चक्र, उसका अपवर्ड फ्लो होता है. और जो यांग एनर्जी होती है उसका डाउनवर्ड फ्लो होता है, यानी कि वो सहस्रार से नीचे सोल चक्र पे आती है. देन देयर इज अ पॉइंट इन द हार्ट चक्र नियर द अनाहता, जहां पे इन दोनों का बैलेंसिंग होता है, यिन एंड यांग. देयर इज अ यूनियन ऑफ दीज टू एनर्जीज. और अगर ये जो ग्राउंडिंग होती है जब आप करते हैं, तो इन दोनों एनर्जी का बैलेंस होता है, yin and yang energy. And when these two energies are absolutely balanced, your chakras will be balanced. So it is very important for us to understand what grounding is, so that we are able to, when we are doing the grounding, we are able to actually balance out our chakras also. इस वजह से हमें नंगे पैर थोड़ा चलना जरूरी है. कंकड़ पत्थर आ भी जाएं तो भी चलना जरूरी है. नाउ हाउ डू वी डू ग्राउंडिंग? थोड़ी सी टेक्निक सब समझ लेते हैं, ताकि आप लोग को जो भी अच्छा लगे आप उसमें से उठा लीजिए और उसको ग्राउंडिंग को करना शुरू कर दीजिए, स्पेशली मेडिटेटर्स. नाउ सबसे पहला टेक्निक जो ग्राउंड करने का है, दैट इज टू पे अटेंशन टू योर ब्रेथ. जो मेरा एक, जिसे बोलते ना, एक गो टू मंत्र है, मूल मंत्र जिसे मैं कहती हूँ, जो पत्री जी ने मुझे दे रखा है. गो टू योर ब्रेथ, बिकॉज ब्रेथ इज योर गुरु. हमेशा से उन्होंने समझाया है, ब्रेथ इज योर गुरु. योर नोज इज योर पिरामिड एंड योर ब्रेथ इज योर गुरु. हमेशा से पत्री जी ने ही सिखाया है. तो जब हम बात करते हैं ब्रेथ की, तो ब्रेथ मीन्स वी आर ट्राइंग टू बी विद आवरसेल्व्स. सपोज अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसी हैं, लाइट हार्टेड हैं, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट अनग्राउंडेड पीपल, अगर आप ग्राउंड नहीं हैं तो आप बहुत ज्यादा स्पेसी फील करेंगे, लाइट हार्टेड फील करेंगे, एंग्शियस फील करेंगे, फोकस करने में बहुत परेशानी होगी, आप कोई भी चीज लर्न नहीं कर पाएंगे जल्दी, यू विल फील वेरी अनसपोर्टेड, अनलव्ड. ये साइंस होते हैं अनग्राउंडिंग के, यानी कि आप ग्राउंडेड नहीं. तो जब हम, सपोज अगर आप अनग्राउंडेड हो, आप स्पेसी फील कर रहे हो, यू नॉट फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड, यू कैन जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ. सपोज मैं एंग्शियस हूँ, कहीं पे जाना है, कुछ करना है, क्या है, वहां एंग्जाइटी हो रही है मुझे, आई विल फोकस ऑन माई ब्रेथ. जैसे ही मैंने अपनी ब्रीदिंग के ऊपर, अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करना शुरू किया, आई बिकम वेरी ग्राउंडेड, वेरी क्लियर एंड वेरी काम. That anxiety, that panic just goes away. वो नहीं होता है anymore, because my mind is now in the present. It is not going and running towards the future. It is not reliving the past. It is in the present. Yeah.
नाउ बीइंग इन द नेचर, जैसे ग्राउंडिंग मोस्टली जो होता है वो नेचर के समीप रह के, उन नेचर के पास रह के ही होता है, क्योंकि जो नेचर होता है रिस्टोर्स आवर बायोफील्ड। जो हमारा ऑरा है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जिसे हम बायोफील्ड भी बोलते हैं, वो मदर अर्थ जो है बहुत जल्दी, या नेचर जो है वो बहुत जल्दी हमारे उसको रिस्टोर कर देता है। बेस्ट चीज है अगर आपको गार्डनिंग आती है, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो ग्राउंडिंग बहुत जल्दी उन सब लोगों को हो जाती है। अगर गार्डनिंग नहीं भी करते, यू कैन यूज दिस टेक्निक। एक टेक्निक आप यूज कर सकते हैं जिसमें कि सपोज अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो अपने हाथों को, या नहीं भी करते हैं तो आप अब क्या कर सकते हैं, गड्ढा खोदिए और अपने पूरे हाथों को, अपने हाथों को उसके अंदर डाल दीजिए थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट फॉर 10 to 15 minutes. Why I'm saying you should do it? Because on our fingertips we have energy meridians. ये यहाँ पे सब जगह energy meridians होते हैं. Mostly here on the fingertips we have energy meridians. और वो energy meridians हमारे activate हो जाते हैं जैसे ही वो connection होता है उनका मदर अर्थ से। और जैसे ही वो activate हुए, आपने energy लेनी मदर अर्थ से शुरू कर देते हैं, और वो पूरी तरीके से जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो हमारी पूरी बॉडी में जाता है। सो इफ यू आर नॉट अ पर्सन जो कि बेयरफुट वॉक कर सकता है, जो उनको प्रॉब्लम होती है, उनके पैरों में तकलीफ है, नहीं कर सकते हैं इतना वॉक, बेयरफुट नहीं कर सकते हैं, तो ये अपने हाथों को गार्डन में या किसी भी मिट्टी में पूरी तरीके से इमर्स करके ग्राउंडिंग अपने आप की कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी गुड टेक्निक्स ऑफ ग्राउंडिंग। देन कम्स एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, नहीं अगर आपको पता है तो जरूर पढ़ें, जिसको बोलते हैं शिनरिन योकू, जिसे कहते हैं फॉरेस्ट ब्रीदिंग। सो इफ यू नॉट हर्ड अबाउट दिस वर्ड, प्लीज डू दैट। इंटरनेट पे जाइए, देखिए क्या है शिनरिन योकू। आई वांट यू टू स्टार्ट रिसर्चिंग। Shinrin Yoku is a forest breathing, and it's a beautiful and wonderful way of grounding yourself. जब आप फॉरेस्ट में जाते हैं, when you hug a tree, अगर जहाँ फॉरेस्ट नहीं है पार्क्स होते हैं, पार्क्स में जाके आप एक ट्री को हग कर लो, आप पेड़ पौधों से बातें करो, आप उनके साथ एक हो जाओ, try to be one with them. That will help you ground. And at that time, if you're not wearing your slippers, if you're just walking on the grass, if you're walking there, you will be able to get all the energies of the Mother Earth, the electrons of the Mother Earth. और अगर आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, because sometimes it happens that जो हमारे जो हम मेडिटेट करते हैं तो बहुत ज्यादा कभी कभी एनर्जी उनके पास आ जाती है, बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी होती है, उसका सप्लाई हो जाता है, तो उस समय भी आप मदर अर्थ को दे सकते हैं। बट डू नॉट फॉरगेट टू थैंक मदर अर्थ, बिकॉज शी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब ऑफ टेकिंग द एनर्जी विच इज अनवांटेड। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू बी ग्रेटफुल। शी इज डूइंग सो मच फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग ये चीज जरूर करते हैं, लेना देना करते रहते हैं, बार्टर सिस्टम करते रहते हैं, लेकिन हम लोग कभी थैंकफुल नहीं होते प्रकृति के लिए। सो वी हैव टू बी वेरी थैंकफुल टू द प्रकृति हु इज डूइंग सो मच फॉर अस। देन कम्स अनदर वे ऑफ ग्राउंडिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्ट बेथिंग। या तो जब हम सॉल्ट बेथिंग की बात करते हैं, सॉल्ट बेथिंग जिसे आप लोग रॉक सॉल्ट बाथ कहते हैं, वो लेना जरूरी होता है या ये करते हैं। तो एक रॉक सॉल्ट बाथ, अगर सपोज अगर आप बहुत ज्यादा ड्रेन फील कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, और ऑफिस में आप बहुत ज्यादा परेशान थे या घर पे बहुत परेशान हैं, सो यू कैन हैव रॉक सॉल्ट बाथ या हिमालयन सॉल्ट बाथ या एप्सम सॉल्ट बाथ। ऑल थ्री आर गुड। तीनों में से कोई भी एक पानी में डाल के आप उसको ले सकते हैं। यू कैन जस्ट डू दैट ब्रीथिंग। और इससे क्या होता है, क्यों होता है ये ब्रीथिंग? इसलिए क्योंकि सॉल्ट जो होता है उसके अंदर एक मिनरल होता है मैग्नीशियम, जो कि मदर अर्थ के कोक से निकलता है, कोर से निकलता है। और वो मैग्नीशियम जो होता है वो बहुत ज्यादा हमारे सेरोटोनिन्स को, हमारे सेरोटोनिन्स को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करता है, जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं हमारे सेरोटोनिन,
उसको करता है. It has the tendency to protect us from the unwanted energies. It absorbs all the unwanted energies. इस वजह से रॉक सॉल्ट वाटर बाथ या एप्सम सॉल्ट वाटर बाथ या हिमालयन सॉल्ट वाटर बाथ हमें लेना चाहिए ताकि हम ग्राउंड कर सके अपने आप. Then another thing is crystals. You can also use crystals to ground yourself. And what are the crystals that you can use? You can use jasper, you can use onyx, you can use obsidian, you can use hematite. You can use all these crystals in order to ground yourself. Now, the best and important thing, meditation के time पे हम लोग ground कैसे कर सकते हैं अपने? While doing the ध्यान. जब हम ध्यान में हैं, ध्यान करने के इमिडिएटली बाद अगर हम पार्क नहीं जा सकते हैं तो हम अपने आप को ग्राउंड कैसे कर सकते हैं? सपोज पार्क नहीं जा सकते या हम किसी वाटर बॉडी के पास खड़े नहीं हो सकते, फॉरेस्ट ब्रीदिंग नहीं कर सकते, शिनरन योगा नहीं हो सकता, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमको ग्राउंड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? और हम ध्यान कर रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, क्या कैसे हम मेडिटेट ग्राउंड कर सकते हैं? दैट्स द लास्ट टेक्निक दैट आई एम शेयरिंग विद यू. सो सबसे पहले जब हम ग्राउंड करने लगते हैं अपने आप को, उसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है. और मेडिटेशन के बाद यू जस्ट हैव टू इमेजिन, किस तरह से क्या इमेजिन करना है? दैट योर फीट आर फर्मली ग्राउंडेड. और इमेजिन करना है कि आप एक एंशिएंट फॉरेस्ट के, बहुत ज्यादा एक एंशिएंट फॉरेस्ट है, उसमें आप सबसे ज्यादा एक ओल्डेस्ट ट्री हो जो खड़े हो. You're standing and your roots are going deep into the core of Mother Earth. अपने आप को आप विजुअलाइज करेंगे कि that you are not a human being but an ancient tree and an ancient forest, and your roots are going down into the Mother Earth, into the core of Mother Earth, womb of Mother Earth. नहीं पता वूम या कोर क्या होता है? इंटरनेट पे जाइए, देखिए अर्थ के कितने हिस्से होते हैं. मदर अर्थ का आप देखेंगे पूरा चार्ट, आपको पता चल जाएगा कि मदर अर्थ का वूम कहाँ है, कोर कहाँ है. वो एकदम बीच में होता है, इतना छोटा. ऐसे जिस तरह से हमारे फीमेल्स में एक वूम होता है, वैसे मदर अर्थ का भी वूम होता है. देन आफ्टर दैट sink into the Mother Earth's core, and then close your eyes and just listen to the any kind of a discordant energies, tension bhari energies, कुछ भी है ऐसी energies which are not good for you, frenetic energies, कुछ भी ऐसा लग रहा है जो आपकी बॉडी के लिए, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. You just listen to those tensions, just listen to them and gather them all, and then consciously push those into the womb of Mother Earth. उसको पुश करना है, मतलब अंदर से पुश करना है कि वो एक एक टेंशन, एक एक स्ट्रेस, एक एक शब्द, एक एक वर्ड, वो धीरे 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 करके नीचे मदर अर्थ के वूम में चला जा रहा है. And once it is done, you have to do another thing, is that you now have to feel the warm and calming energy of Mother Earth coming to you. यानी कि आप अपनी एनर्जी को, फ्रेनेटिक एनर्जीज को दे रहे हैं, एंड मदर अर्थ से उनकी कामिंग, एक मदरली, अफेक्शनेट, कंपैशनेट एनर्जीज को अपने एक एक सेल में, अपनी बॉडी के एक एक हिस्से में लेके जा रहे हैं. You have to visualize this, and it has to start from the soul chakra, यानी कि आपके पैरों के तले का जो चक्र होता है, सोल चक्र, वहां से आप ले रहे हैं और वहीं से आप दे रहे हैं. And fill and expand this vibrant energy of Mother Earth in each and every cell of your body. So that's what grounding is when we try to ground ourselves through different techniques. जब हम अपने आप को मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा भी ग्राउंड कर सकते हैं anywhere.
ग्राउंडिंग की बहुत सी टेक्निक्स होती है। आई हैव शेयर्ड ओनली वन राइट नाउ, जो कि मेडिटेशन के साथ हम कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत सी टेक्निक्स होती हैं। सो आई हैव शेयर्ड वन विच इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। सो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो दिस वाज व्हाट आई हैड टू शेयर टुडे, दैट व्हाट इज ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग क्या होता है, कैसे करना चाहिए, क्या टेक्निक्स होते हैं। अब इनमें से जो आपको टेक्निक पसंद है आप उसको ले सकते हैं और अपने आप को ग्राउंड कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ, जस्ट एज पत्री जी ऑलवेज सेज, एक्सपेरिमेंट। सो ये चीज थी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आई होप दिस सेशन हेल्प यू, एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज कम एंड शेयर your experiences or any questions that you have or any kind of confusion that you have. Anybody has a question, you can unmute yourself and ask Charuji. और आपका कुछ शेयरिंग भी हो वो भी आप कर सकते हैं. So please do. If you want, I can put on the gallery view, Charuji. वो अच्छा पड़ेगा कि do you think gallery view might be better? Anything. Yeah. So can we do gallery view? मुझे कलर दिखाई देते हैं मैम बेटा, मुझे कलर दिखाई देते हैं और उसके बाद फिर बंद हो जाते हैं, जिससे आगे पहले मेरे को एक गुफा भी दिखती थी, उसके अंदर जाती थी मैं, बहुत लंबा सफर होता था। अब मुझे वो बंद हो गया, ऐसा क्यों हो? ये इंदिरा जी बोल रहे हैं ना? हाँ, इंदिरा जी बोल रहे हैं. इंदिरा जी, कोई भी एक्सपीरियंस जो होता है, ध्यानियों के साथ अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं, 1000 एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर हम ये सोचने लग जाएंगे कि क्यों होता है, तो हम उसी क्यों में फंसते चले जाएंगे। सो हम लोग को क्यों में नहीं फंसना है। देखिए कोई भी किसी भी तरीके के कलर्स अगर दिख रहे थे, शायद उस समय जरूरी थे आपके लिए वो कलर्स दिखना, इसलिए दिखे। और अब नहीं दिख रहे हैं बिकॉज अभी कोई आपकी बॉडी के लिए, मेंटल बॉडी के लिए या फिजिकल बॉडी के लिए नीड नहीं है उस चीज की, इस वजह से अब वो कलर्स आपको नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट, वो एक्सपीरियंस हो चुका है खत्म, अब आपको नहीं करना है वो एक्सपीरियंस। सो लेट्स नॉट, हम लोग फंसे नहीं एक्सपीरियंस या अनुभवों के चक्करों में कि ये क्यों और क्या। वी विल जस्ट टेक द एक्सपीरियंस एंड गो विद द फ्लो। इंदिरा जी आगे थोड़ा बढ़िए, ज्यादा इसमें इतना ज्यादा मत देखिए कि क्यों है क्या है। जब दोबारा आना होगा, अगर दोबारा आना होगा, अगर आपकी सोल जर्नी के लिए ये सही होगा तो डेफिनेटली आएगा, नहीं तो इट वाज जस्ट एन एक्सपीरियंस, क्योंकि मेडिटेशन में बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, राइट? What was the first role of the grounding out of 3 roles? Can you repeat it? The first role of grounding, can you repeat it one more time? Taking the unwanted energies. Oh, okay. Thank you. Discharging them. बेटा, मैं बात करना चाहती हूँ आपसे, मुझे कुछ समय देना। इंदिरा जी, हम जरूर बात करते हैं, पहले मैं क्वेश्चंस में ले लेती हूँ एक बारी। Sharuji, I have a question. May I ask you? Yes, this is Anjali. who's this? Anjali ji. First, I think I will take Aminder ji because she has already raised the hand for a very long time. So, Aminder ji, can you please unmute yourself and ask the question? Yeah, Sharuji beautifully explained. Actually, I've been following you for a long time. My first time I you on the screen because today was a very good session. और one small request, if you have time और सब permit करें तो एक small grounding meditation कर दीजिए जो आपने explain किए तो। मेडिटेशन का मैंने आपको सिखा दिया है और मेडिटेशन और ध्यान आप करते हैं, so it is better that you just listen to your voice, the mother earth, and you do the grounding yourself, and please do share the experiences that you get through grounding, क्योंकि अगर अब मैं मेडिटेशन कराने बैठी, guided meditation, it is going to take another 30 minutes 40 minutes, so right now some other time please do it. Yes, some other time definitely, but मैंने आपको टेक्निक बताया है, एक बारी जरूर करें उसको
और बताएं कि आपको कैसा लग रहा है. Yeah, Oh, thank you so thank much. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. Yes, Yes. Anjali ji. Yeah, hi. How are you? Sharuji, I had a question. It's funny that you talk about grounding today, and while I'm listening to your lecture, I'm actually sitting on a grounding mat. Wow. Oh, amazing. Wow. Yeah. I don't know if Okay. you've seen one of those, but I did not know anything like this. I heard about it recently from one of my college friends, and she's really a big this thing. She talks a lot about it in India about earthing and grounding by Clint Ober, and I do it more for my health. And she's seen so much success rate with like arthritis and cancer patients and multiple diseases. The diabetics, they've got so much benefit. So my question to you is, I'm reading a little bit about, the books, this on earthing and stuff like that. But I wanted to find out, like, is it just the hands and the feet that have all these things that you can ground and earth by, or is it all your skin that you can get grounded or get the electrons passing up and down? See, basically, it's the energy meridians that we are talking about. And the energy meridians, mostly they are in your hands and in your soles of the feet. That's why the grounding is effectively done through the sole of the feet. That's why. Otherwise, the entire body has energy meridians because we have nadis, jinko bolte hain. So it is all there within us. But this is only through the sole and the hands that the energy transference happens. We can also lie down. Doesn't mean that you will not ground yourself, but if you are doing it through your fingers and your soles or your feet, it will be effectively done. So the results will be more as compared to if you are just, lying down. You will not be able to give or take the energy. That's And why. your take on, like, we live here usually almost 9 months out of the year. It's pretty cold and you can't really like go in the grass and walk or, go on the ground and like start gardening. So we have that, it's very cold here. So that's why I got this grounding mat. And I said, let me start. But I wanted to ask you, like, how much would you recommend sleeping on this, or what's the experience? Like, can I sleep on it whole night and be grounded? But I still have like layers on me. So is that something? Okay, so first you have to ask yourself, do I need to sleep? Am I grounded? Because, if you're already grounded, there is no need to ground yourself more than that. Because otherwise, what will happen is excess of everything is bad. Yeah. So you know that you have given you the unwanted energies, or you have taken the energies which was not there. Now you're feeling good. You're feeling absolutely balanced. You're feeling relaxed. You're feeling calm. So there's no need for you to sit on the mat throughout the night. You can just go back to the bed or go back to your sofas and you can sit there. Okay. So don't take the excess amount or don't give the excess amount. Whatever it is, give and take should be also done in the balanced way. Thank you so much for sharing. Thank you so much. Shukriya Anjali ji. Thank you so much. Yeah. Anybody else? I have one sharing myself. अभी हमारा प्रकृति weather थोड़ा अच्छा होता है. So we starts with the gardening and all those things. I've been working in हमारे lawn और बाहर काम करती थी. तब shrubs और trees होते हैं उनको थोड़ा साफ करने का, उनका mulching करने का, soil करने का सब करती थी. I was in the backyard with we have a beautiful rose plant है हमारे यहाँ, तो उनको थोड़ा I was trying to clean it out around it, और उसका जो old buds थे सब कट करती थी और सब करती थी. वो करती थी, I don't know why, but I started like a motherly secretion in my breast. Wow. And was amazing feeling. I almost hugged that tree. I don't know, maybe there was some connection going on, but this did happen. Wow, amazing. And I usually love gardening. मैं बहुत मुझे अच्छा लगता है.
प्लांटिंग करना, ट्री को अच्छा बनाना, वो सब अच्छा लगता है। और आई डिड द सेम थिंग। मैं मेरे बेटे के, छोटे बेटे के घर पे ही भी कल गई थी। तो दीप्ति हमारी बहू है, तो कि मॉम कैन वी स्टार्ट सम प्लांटिंग हियर एंड देयर एंड दिस दैट, एंड हम दोनों करते थे। और उसको भी मैं एक्सप्लेन करती थी, तभी उसको कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज to be connected with the plants, and uske through we get connected with earth, soil, and it feels so good. I'm telling you, it was amazing feeling. और उसको भी वही मैं explain करती थी कि it relieves your tensions and everything from your body and gives you so much energy. It's unbelievable. वो मैं दीप्ति को भी वही मैं समझा रही थी कि how important it is. So it's a really good feelings. I got it. Amazing experience that you shared, और Damayanti ji. आप आज ही वो grounding की बात कर रहे हैं। जी. Wow, thank you for So sharing much this. It's connection wonderful. with Yeah, the universe has some way of connecting everything. absolutely. I learned all these things totally new. I had no idea. Thank you so much. I was not aware of this. Thank you. Shukriya. Thank you very Neema much. ji. Thank you very, very much. Thank We you. heard Thank you. about it, सारूजी, बहुत ही सुना है, लेकिन what is grounding? What is important? How it's connected? How the मेडिटेशन में कराती भी हूँ, तभी भी बोलती हूँ कि मदर अर्थ के वूम में जाइए, उसके अंदर जाइए और उसकी सब एनर्जी का फ्लो उसका ग्रहण कीजिए। ये सब मैं बोलती हूँ सब, लेकिन आज उसका टोटली फीलिंग ऑफ इट केम थ्रू। So glad Thank you you. came. Thank you. Your explanation was excellent. So Shukriya. 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 Yes. Thank you so much. Thank you. Anybody else has a question or anything, please go ahead. If any health issues you have it, you can ask Saruji. She's excellent, in explanation of anything you want it. Most of us ladies do go through quite a bit of, cancerous situations or ovarian or lower body का, हाँ, तो उसमें is it because of this not properly earthing is done, or cancer situations and all those things? How can we come out of it? Damayanti ji, cancer, there are two factors in cancer. One is karmic, that we need to balance, because when we talk about karma happens and karma balances itself with two things. One is through health issue and the other one is the financial issue. And that's why you would see that out of 100% population, there are 90% who go through either health issues and the financial issues, because the karma needs to be balanced. When we talk about cancer in females, especially the females, it is either the breast cancer or the ovarian cancer or uterus, or the cancer in the uterus. So there are two different things, but yeah, they are intertwined and interconnected. For example, if a person has a breast cancer, that means that we are not nurturing ourselves pretty good in a better way, or we are not loving ourselves much. That's why this nurturing thing, because when we talk about breast is what? It nurtures. It gives life, to the baby, and we are giving that. So that means that in the past life or in this life, you're not nurturing yourself enough and you're not loving. You are just trying to curse yourself, or your childhood has not been so good. So you have to just go through it, go through your life. You have to revise your life. You have to see your life, review your life, and you will get to know that from when it actually started. And then you have to go there and heal it. Similarly, when we talk about ovarian cancer or uterus cancer, it is very much related to, उसको हम sacral से जोड़ते हैं.
हम लोग सेक्रल चक्रा से जोड़ते हैं, हम लोग बेस चक्रा से जोड़ते हैं। तो जो लोग जिनका फाउंडेशन वीक होता है, यानी कि जो कि बहुत इनसिक्योर होते हैं अपनी लाइफ में, especially ladies who are very insecure financially, mentally, emotionally, they are the ones who actually get this kind of a cancer. और मोस्टली आज की डेट में मोस्टली सबको ये होता ही है, फीमेल्स को, नॉट इवन अगर कैंसर नहीं होता है बट ओवेरियन इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, बिकॉज दे हैव दिस इशू ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा। अभी कल ही जब मैं एक मास्टर से उनका सेशन था, जब मैं बात कर रही थी, तो उनको इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटीज थी कि उन्होंने अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटीज डिप्रेशन को इनवाइट कर लिया था, एंड शी वाज स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन इन सच अ वे दैट उनको ये समझ ही नहीं आता था कि उनकी एग्जिस्टेंस किस लिए है इस दुनिया में। कुछ भी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है, अच्छा खासा पैसा है, हस्बैंड इज वेरी नाइस, द चाइल्ड इज वेरी गुड, married, everything is good, everything, but just because there is this insecurity, और insecurity क्या है कि अगर मेरे हस्बैंड चले गए तो मेरा क्या होगा, that kind of an insecurity which she, because of this thought, जैसे मैंने कहा कुछ तो पास्ट लाइफ कर्मा होता है, कुछ हमारा अपना खुद का पास्ट होता है, या हमारे खुद के चॉइसेस, थॉट प्रोसेस होता है। ऐसे देयर वाज अनदर मास्टर हु हैड एक्चुअली, क्या हुआ था उनको कि कोविड के टाइम पे वो इतना ज्यादा डर चुके थे चीजों को लेके कि मैं मर जाऊंगा, दैट ही एक्चुअली ब्रॉट एंड मैनिफेस्टेड कैंसर इनटू हिज लाइफ। नॉट दैट वो डर गया था, क्योंकि उसके लाइफ उसके आसपास के रिलेटिव्स में 2-3 लोगों को कैंसर हो चुका था, और उनको ये लगने लगा था कि इनको हुआ है तो मुझे भी हो जाएगा, तो उनको नहीं होना था, बट ही मैनिफेस्टेड इट फॉर हिमसेल्फ। So it is very important for us to keep working on our emotions, especially ladies who have got, this, अगर वो nurturing feeling नहीं है, loving feeling नहीं है, there is no self love, you keep bantering yourself, अपने आप को आप demean कर देते हैं, अपने आप को नीचा दिखाते हैं, या कोई और आपको नीचा दिखाता है, inferiority complex है। So ये सब चीजें कैंसर को आपकी लाइफ में लेकर आती हैं। So then you have to see what exactly you have to do at that time. What is the emotion that you need to work upon? So that is very, very, very important. Yes. Yeah. Stand up for yourself and love yourself. Yes. Loving is important. Very Loving is important. most important. Yeah. Most. But then you have to also see that self-love के साथ साथ self-conceit, self-absorption भी आ जाता है, selfishness भी आ जाता है. So you have to see whether you are self-conceited or you are actually doing the self-love, because there is a very thin line between the two. Yeah. So, yes. So anybody else wants to say anything? कुछ कहना चाहते हैं before I say my bye-byes and thank yous to everybody? Before I say that. Before you say bye-bye, this is my request to you. I know. At least for 15-20 minutes आप एंजल के साथ हमारा मेडिटेशन करा दे। 15-20 minutes नहीं, I will just आपको मैं वहां तक पहुंचा दूंगी, वहां तक ले जाऊंगी, करना आपका काम है। I will just glide you through that, and then you Sure. can just continue that. Yeah. Yeah. So before you go into meditation, उससे पहले मैं आपको thanks बोल दूं, because I would be leaving the session, because it's my meditation time as well. So I will be, I have to sit separately with the angels. I have to talk to them about certain things. तो मैं आप लोगों को छोड़ जाऊंगी यहाँ पे. I hope this session was and has been beautiful for all of you and helpful for all of you. Yes. Thank Thank you so much. Thanks so Thank much. you. So much. Do Thank you. Do you think do you think we can start with the music or No, I will just give you the prompts, and Okay. once that prompt is over, then after that you can just meditate and start the music. okay. I'll just give you the first prompt. Okay. Yeah. Sonal, did you understood? Sonal? Yeah. Sonal? Yeah. Okay. Then start the music after she's done with the prompt. Yes. Thank you. So चलिए
Thank you, बैठते हैं ध्यान Sharuji, के लिए. so Thank you much, so much. so much, Thank you so so much. much. शुक्रिया Thank you. दमयंती. Thank Thank you so much. Thank you so much, Leena ji. Thank you so Thank you. Thank you Sure. so much. Thank you so much. Shukriya. Thank you so much, ma'am. Thank you so Shukriya. much. Thank you. Thank you. So much. Shukriya. Thank you. Thank you, Thank everybody. you. Thank you. Thank Loads of you. love to you Thank from you. the angelic realm. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का. Thank you. चलिए बैठते हैं मेडिटेशन के लिए. Let's sit in the comfortable state. किसी भी अच्छे से चेयर पे या जहां पे भी आपको कंफर्टेबल है, अपनी एक सीक्रेट स्पेस पे बैठ जाएं. Close your eyes, the beautiful eyes. हाथों को अपने हाथों में डाल दें. Keep your back straight as much as possible, or as you are comfortable with. Now just observe your breath. You're beautiful. You're tranquil. You're magical. Miraculous breath. The breath that gives you everything that you're seeking for. The breath that takes you to different dimensions. सांसों पे ध्यान. किसी सोच, किसी विचार पे कोई ध्यान नहीं, सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान. सुंदर, सरल, प्यारी सांसों पे ध्यान. Breathe in and breathe out. Breathe in love and breathe out all the stress, all the tensions, everything that you have been feeling for so long. Let your shoulders droop. Let your body relax. Completely relax. Just relax. In this beautiful world of yours, I'm inviting the angels into your life. Invoke your angels, the guardian angels, who are there to guide you, to love you, to protect you. They are your friends. They are your parents. They are the love that you have been seeking for. And they are there with you. Just be with the angels and with this beautiful music that is going to be there. Be with yourself and be with your friends.
feel the angels all around you. The healing angels are helping you, giving you the healing energy coming through your whole body, and feel that all around you. We are so fortunate. Slowly come back to your physical body. Fill the room, fill the sitting chair, and feel that energy is flowing through your whole body. And pass that energy all around the house, in the city, in the country, in the whole world. You are spreading the peace and harmony everywhere. Compassion all around it. Slowly, you're coming back to this physical body. One more minute. $30. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly put your beautiful fingers and hand to your beautiful eyes. Cover it and feel that energy inside you. You are glow of energy. It's beaming out of you. Feel that all over you. And welcome back, my friends. Thank you all. Thank you so all- much. You can unmute yourself and thank you. Thank Thank you. you for joining. Thank you so much. Thank you you. so It much. was Thank you. It was wonderful. amazing. Wonderful. Very nice lesson. Words. She's amazing. She's amazing. Nice. Amazing Bring person. her back again Definitely. whenever you can. Definitely. Yes. Amazing. Amazing. Thank you. Thank you all Thank for you so joining. much. Thank you, and thank you very much. I learned a lot. Thank you. And we'll send you the recording out as soon as I Mhm. Yeah. will Damayanti see you. Aunty, I think we would love to have her back, like talk more about angels and how she connects. Yes, right. We'd love Yes, to yes. learn that. Yeah, Yeah, Yes, wonderful. that would be Yes. quite insightful. Definitely. She herself looked like an angel. She was See herself. Yes. she was herself an angel. Yes. Yeah. Right. Definitely. And next week's session will be Monday, not Tuesday, because Shampaji is coming back. Oh, okay. So Shampaji likes to come on Monday night. So we'll have her on Monday. So Okay. keep it in mind that it's a Monday night. We're going to have it. And thank you all. Thank you all. And love you all. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Good night. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye.